Hi guys, welcome to IS Institute. I am your math sir, and today I'll be taking you step by step to the various topics. It's lockdown and you might have enjoyed your vacation for a very great extent. So now we have to wake up. So this is my first lecture which I'm taking on the portion of 11th standard which is a part of the section 1, okay, part 1. And this chapter is very common for 11th standard, whether it is art, science or commerce. It's a very common chapter, and you'll all find that it's a easy chapter as well. A little complications may be there. Just give me a second. So a little complications are basically because this is a completely new type of numbers that we have done. Now at my place you will always find that concepts should be very clear, and I'll try to make all the basic concepts as clear as possible so that you will be able to understand the chapter काफ़ी अच्छा तरीके से तुम लोग समझ पाओगे. So we'll start with the chapter. This chapter is the third chapter in the commerce syllabus I'm talking of, but it could be of a different number in arts and science, but the concept is same. तो बेसिकली जब भी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? टिपिकली हम लोग उसको 1, 2, 3, 4 अनगिनत नंबर तक काम करते हैं. देन वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज होल नंबर. ठीक है. Now whole number starts from 0 and these are also complete numbers. इसके बीच में इनका intermediate values नहीं आते. तो natural number हो गया, whole number हो गया. Then we also have integers. Okay. Now integers तो normally हम लोग number system में करते हैं. तो 1, 2, 3 इधर ungated up to infinity. -1, -2 up to infinity this side as well. But in this case, natural numbers is normally denoted by n. Whole numbers we denote it by w, and integers we denote it by I. तो तुम लोग सब लोग इस numbers के बारे में जानते होंगे, all these type of numbers. और इसके बाद आता है rational and irrational numbers. So what are rational numbers? So rational numbers are normally denoted by Q. They are numbers of the form A upon B, where A and B are element of integers and B is not equal to 0. ये एक तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का. यानी कि आखा नंबर तो आएगा ही आएगा. इसके अलावा इसके बीच का जितना भी फ्रैक्शंस है वो आएगा, डेसिमल्स है वो आएगा. तो रैशनल नंबर्स में यू कैन हैव लाइक 2/3 -5/4. तो रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से, एक तो ये जनरल हो गया. इट इज ऑल्सो ऑल दोज नंबर जिसका रूट निकलता है. अभी यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट डाल रहा हूँ, क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट ऑफ 16 हो सकता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आएगा 2, 4th रूट ऑफ 8 का आंसर आएगा 2. अब मैंने सिंपल नंबर्स लिए, 16 का 4th रूट भी आएगा 2. तो वो सब नंबर जिसका रूट निकलता है दे ऑल्सो कम इन रैशनल नंबर्स. फिर डेसिमल फॉर्म, terminating. या non-terminating, and recurring. ये भी रैशनल में आता है. जैसा सपोज मैं वेरी सिंपल ले लूँ 8
अरे 7/2, तो ये फिक्स आंसर आएगा 3.5। बट वही अगर मैं 7/3 करता हूँ तो 3 to the 6 आएगा, डॉट, फिर एक बचेगा, 3 3 the 9, तो 999 ऐसा रिपीट हो जाएगा। तो दे ऑल कम अंडर रैशनल नंबर्स। तो natural numbers are denoted by n, आखा numbers 1, all numbers starting from 1, whole numbers 0 1 2 3 4, खाली natural number whole numbers में natural number में whole numbers is just one number 0 more, integers में you have all the stream of negative numbers, but in all these cases they are complete numbers, there is no decimal involved. rational numbers में ये तो पूरा है ही, और उसके अलावा इनके बीच में जो भी numbers possible है, डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर जिसका रूट निकलता है, दे ऑल कम अंडर रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड देन वी आल्सो हैव इरैशनल। कभी यहाँ पे इरैशनल नंबर्स अभी हटा लेते हैं। यहाँ पे इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू डैश एंड इट इन्वॉल्व्स, तो नंबर्स कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यानी अगर कोई नंबर का डेसिमल फॉर्म हम लोग लेते हैं, जैसे पाई ले लेंगे, तो 3.14 हम लोग समझते हैं, बट व्हेन यू गो टू डिवाइड उसका कभी आंसर फिक्स नहीं आता है, तो ऐसा नंबर है कॉल्ड इरैशनल नंबर। सो इफ आई किसी का भी डेसिमल फॉर्म सपोज 2.30 330 3330 ऐसा आते ही जाएगा, ये 1.92 992 97 997 997 एंड सो ऑन, या वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, जिसका फिक्स आंसर नहीं आता है, they all form under irrational numbers, and this all numbers together are called real numbers. तो real numbers के बारे में we have studied in detail. So अगर real numbers का अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे और we show the Venn diagram, तो real numbers का Venn diagram कैसा आएगा, I'll just write it down here. सबसे पहला आएगा natural number, फिर आएगा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर नेचुरल नंबर से सिर्फ एक नंबर ज़्यादा है। फिर वी गो टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में ये तो सब आएगा ही, -1 -2 -3 अप टू अनकाउंटेबल नंबर्स। ओके, उससे बड़ा is rational numbers denoted by Q. Okay, A by B फॉर्म, सब नंबर्स को हम लोग A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को 1/1, 3 को 3/1, ये सब नंबर्स जिसका भी मैंने जिक्र किया है यहाँ पे, जैसे जिस नंबर्स का रूट निकलता है, रूट 4, या जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग टाइप है 1.5, या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग 1.2222, 2 तो नहीं आएगा, सॉरी 1.33 आएगा, अनकाउंटेबल 3 तक। तो ऐसे सब नंबर्स कम्स अंडर रैशनल, और इन सब का बाप इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय R, और रियल नंबर्स में जो रैशनल नहीं है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, वो इरैशनल है, इसलिए क्यू डैश डाला जाता है। ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू डैश, रैशनल नंबर्स क्यू, दीस आर द बेसिक सिंबल्स जो हम लोग नॉर्मली मैथ्स में यूज करते हैं। सो दिस वाज अ समरी व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स हम लोग ने आज तक पढ़ा है, और उसका सिंबल्स भी मैंने दिया। तो इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो रैशनल और इरैशनल में समझो, जो रैशनल है इस सर्कल में, रियल नंबर्स में जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, एंड उसमें मैंने बताया जो नंबर्स का रूट नहीं निकलता, जैसे रूट 5, ये टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग 30 330, ऐसा कंटिन्यूसली आता रहेगा, ना रिपीट होगा ना एक ऑर्डर में होगा,
then they all come. So this is what we know till now. ठीक है, तो अभी हम लोग जो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अभी मैं यहाँ पे खाली ये वाला टर्म उड़ा देता हूँ. डस्टर, टाइम पे डस्टर गायब. तो इधर तक हम लोग का रैशनल नंबर्स का हो गया और वी स्टडी व्हाट आर रियल नंबर्स. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप. मैं खाली इरेशनल को उड़ा देता हूँ यहाँ से, which is called as imaginary numbers. तो रियल तो हम लोग ने पढ़ा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर जैसा हो गया. अगर तुम लोग को लास्ट ईयर का, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर व्हेन वी यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते. अगर वो नेगेटिव आया तो हम लोग को चेक करने के टाइम हम लोग बोल देते हैं रूट्स आर नॉट रियल. तो रूट्स आर नॉट रियल का मतलब जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट निकालने का रहेगा देन द रूट्स आर नॉट रियल. लाइक सपोज मेरे पास रूट ऑफ -8 है या एनी नंबर, रूट ऑफ -15, इवन रूट ऑफ -4, these are called imaginary numbers. Okay, so imaginary numbers क्या है? Numbers of the form or type okay, numbers of the type root of suppose -k. ये k can be any number. तो ऐसे टाइम में अब लोग ये -1 in such a situation what we do, we say let -1 is equal to I². So what will happen? This will become I² into k. तो I बाहर आ जाएगा तो I√k. Now this you can either find the root, अगर रूट निकलता रहेगा, नहीं निकलता रहेगा तो ऐसे ही. तो इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग डिफाइन कैसा करते हैं? So what we do to work out with these numbers, हम लोग ये -1 को I² लिखते हैं ताकि रूट के बाहर वो निकले एंड वी गेट I. तो imaginary numbers are numbers of the type ki, okay, where k is element of real numbers. Now real बोलेगा तो any of these type of numbers. इसमें irrational है वो भी चलेगा, जैसे मैंने बोला था रूट नहीं निकलेगा, √5 तो भी चलेगा. एंड I is equal to √(-1) या इसी को हम लोग करेंगे तो और I² is equal to -1. तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो माइनस की जगह पे हम लोग we take it as I² and then when we instead of -1 we write it as I². तो I is √(-1). ठीक है, so I is √(-1). If we square on both sides, I² will be -1. Such numbers are called imaginary numbers. Now we come to the actual part of complex numbers. तो complex number क्या है? It's a type of imaginary number. तो जहाँ पे ये I वाला कहानी हो, this type of numbers में type of imaginary number. तो complex number तो it's a number of the form a plus bi, okay, where a and b are element of real numbers. Okay, and I का definition क्या रहेगा? I will be √(-1). क्योंकि ये वाला पार्ट उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो whenever we take any complex number, it is denoted by z.
I'll see z is equal to a plus bi. So to understand it, it can be 2 plus 3i minus 5 by 4 plus 2 by 7i. So every complex number has one part which is a real part जिसमें कोई i नहीं रहेगा और the other part जिसके साथ i चिपका हुआ रहेगा. तो that part जिसमें i नहीं रहेगा is called the real part. We take the real part of z, imaginary part of z. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आर ई और आर जेड लिखा है. This all stands for the real part. Imaginary part के लिए वैसे ही आई जेड लिखा रहेगा. तो रियल पार्ट मीन्स इसमें रियल पार्ट इज ए, इमेजिनरी पार्ट इज बी. इसमें रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज +3. And then we have इस केस में real part is -5 by 4, imaginary part is 2 by 7. I can also have, I'm just taking different examples of imaginary numbers. बहुत सारे आप चाहे वैसा कर सकते हैं. So I can have √3 plus √5i minus ले लेते हैं. तो real part is √3, imaginary part is -√5. तो हम लोग ने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है ये हम लोग को सब we all are aware of this. This is something new. So when do I get an imaginary number? When inside the root I get a negative sign. देखो -16 का आंसर तो नहीं है, जैसे इसका आंसर नहीं है, बट अभी मैं आई में कन्वर्ट करूंगा तो इनके आंसर्स निकलेंगे. लाइक सपोज मेरे पास -√8 है, सॉरी माइनस अंदर, आई राइट इट एज -1 into 8. -1 को मैंने i² बना दिया बिकॉज इन इमेजिनरी नंबर्स i is equal to root of -1 of i² is -1. स्क्वायर दोनों बाजू किया तो रूट हट जाएगा. तो दिस विल बिकम रूट ऑफ i² into 8. 8 का रूट निकलेगा तो 2√2 निकलेगा और i, तो इट विल बी 2i √2. यानी कि 8 का 2 into 2 into 2 3 टाइम 2 होता है. 2 के लिए 2 बार स्क्वायर रूट है, इसलिए i² का i बार. तो लाइक दिस यू कैन हैव, सपोज मेरे पास रूट ऑफ -4 है, सो इट विल बिकम रूट ऑफ i² into 4 हो जाएगा 2i. तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वी हैव रियल फॉर्म एंड इमेजिनरी फॉर्म. So if I want to write this in the form of complex numbers, I'll write it as 0 plus I 2√2. ये 2√2i इस तरह से, तो a plus bi. इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो it will be 0 plus 2i. But unfortunately in these type of sums, the real part is 0, so it has only imaginary part. That's why it is an imaginary number. So complex number में you can have the real part as well as the imaginary part. This is the basic concept of complex numbers. 2 मिनट इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज कंसेप्ट्स का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ओनली थिंग इट्स अ कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग ने अभी तक रियल नंबर्स पढ़ा है, इमेजिनरी नहीं. So I'll give you 2 seconds, just go through it and then I'll come back. ओके, वी हैव अंडरस्टूड कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है. तो कोई भी नंबर जिसको a प्लस बी आई के फॉर्मेट, अभी कोई बुक्स में a प्लस बी आई, किसी में p प्लस क्यू आई, किसी में m प्लस एन आई, सबका मतलब यू हैव अ रैशनल पार्ट एंड यू हैव a and b are rational, but you have a real part and an imaginary part. Real part मतलब without i. So conjugate of a complex number, suppose we have a complex number z. So suppose मेरे पास 2 plus 3i है, या p minus qi, ये अलग अलग मैं ले रहा हूँ. 2/3 minus 5/4i minus 7 plus 3i
minus 2i plus 3 minus 5i. ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट is denoted by z bar. If complex number is denoted by z, its conjugate is denoted by z bar. Okay. Now उसमें खाली क्या करने का, उसमें what we have to do is that उसका जो imaginary part है सिर्फ उसका साइन चेंज करने का, यानी कि 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3i का हो जाएगा माइनस 3. अब यहाँ पे p वैसे ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस qi. तो what will happen here? 2/3 माइनस i वाला टर्म का साइन चेंज करो. Now why is this done? Because many time we use complex numbers जिसमें डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तभी तुम लोग को समझेगा. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइज. इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. रियल पार्ट इसमें है नहीं तो जीरो समझो, इसका आएगा प्लस 2i. रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो. तो अगर हम लोग z इंटू जेड बार करते हैं तो इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी. तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ बेसिकली हम लोग 99% केसेस में वी यूज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. Conjugate of a complex number is called as its complex conjugate, just to rationalize. तो तब if it is 2 plus 3 हम लोग ऊपर नीचे 2 minus 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2 square minus 3i the whole square. It will be 4 minus 9i square. I square का वैल्यू -1 होगा, तो -1 into 9 will become plus 9. 4 plus 9 13. That's the main use. जब भी हम लोग सम्स करेंगे तो तुम लोग पता चलेगा. So in this case it will become p square minus qi the whole square. So it will become p square minus q square I square. I square का वैल्यू -1, so it will become p square plus q square. Because ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i वाला टर्म ही चला गया. तो whenever we use a complex number and its conjugate और उसको multiply करते हैं तो इस तरह से होता है. तो in this case also suppose 2/3 the whole square 5/4 I the whole square. So 2/3 will become 4/9 plus 25/4 I square. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/9 minus 25/4. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे होएगा 4 9 36. क्योंकि 9 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है. 4 4 16 माइनस 25 इंटू 9 इज 225. इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी यहाँ पे सपोज 2i इंटू माइनस 2i, तो इट विल बिकम -4i स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, तो इट बिकम +4. सेम ये आगे वाला जैसा ही है. तो दैट्स द इम्पोर्टेंस और द यूसेज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग को बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a plus bi and p plus qi are said to be equal if and only if their real part and imaginary part are equal. So if I say a plus bi is equal to p plus qi, इसका मतलब a is equal to p and b is equal to q.
तो ये हम लोग को कहाँ पे काम आता है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज ही सबसे इम्पोर्टेंट है. तो लोग विल गिव यू एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या विद लॉट ऑफ आईज एंड ऑल, और लोग बोलेगा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a plus bi and find a and b, तभी ये काम आएगा. बट फिलहाल वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल. सो इफ आई से a plus bi is 5 plus 3i, so a is equal to 5 and b is equal to 3. और दूसरा एग्जाम्पल, सपोज आई से p plus qi is equal to -7 minus 3i. तो इसका मतलब p is equal to -7 and q is equal to -3. इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तभी ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेफिनेशन हम लोग को काम आता है. नेक्स्ट आता है एडिशन. तो हाउ डू वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ द रियल part and imaginary part. Suppose मेरे पास है एग्जाम्पल एडिशन. सपोज आई हैव टू डू a plus bi plus p plus qi. तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो a और p साथ में रहेगा, तो a plus p b plus qi. तो एग्जाम्पल लेंगे, सपोज ये अब 2 plus 5i plus 3 minus 2i. तो नॉर्मल अलजेब्रा में जो अल्फाबेट्स के साथ हम लोग करते हैं उसी तरह करेंगे. ब्रैकेट खुलेगा तो होगा 2 plus 3 plus 5i minus 2i. तो i बगैर का टर्म और i वाला टर्म वी टेक देम टुगेदर. साइन के हिसाब से इट्स अलजेब्रिक एडिशन. तो दिस विल बिकम 5 plus 5 minus 2 3i. सेम में विद सब्ट्रैक्शन, अगर ये सेम सब्ट्रैक्शन में आता है, सपोज वी हैव a plus bi minus p plus qi. तो ये माइनस के कारण ये दोनों का साइन चेंज होएगा, माइनस p माइनस qi. तो a माइनस p रैशनल पार्ट, आई मीन रियल पार्ट, b माइनस q और फिर i. तो सपोज वी हैव 5 plus 3i minus 7 minus 2i. ब्रैकेट खुलेगा तो 5 minus 3i, ये माइनस के कारण -7 minus 2 minus plus 2i. ये दोनों को साथ में लेंगे रियल पार्ट. तो 5 minus 7 कितना होता है, -2, -3 -2 लगेंगे -1. -1i लिखो या सिर्फ -i लिखो तो भी चलेगा. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मीन्स any constant term. It can be a rational number, any type of real number. Okay. So, but it should be a non-zero. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? Like suppose a plus bi is any complex number and k is a scalar. Scalar means any number. It can be root wala, bagair root wala, plus, minus, fraction, complete numbers. Then k into a plus bi is k into, so this is scalar multiplication. So it will be ka plus kbi. So suppose I have 3 into 5 minus 2i. So 3 5s are 15 minus 3 2s are 6i. Suppose I have another example. 2 by 3, 2 minus 5i. तो ऊपर मल्टीप्लाई, 2 to the 4 upon 3, 2 5s are 10 upon 3i. So these are the basic concepts of scalar multiplication. इसके बाद we go to study about the next one. Actually अभी मैंने पहले complex numbers क्या है सिखाया.
फिर हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या सिखाया, फिर हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, इक्वालिटी का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन देख, ये दोनों एक्चुअली सिमिलर ही है, साइन के हिसाब से अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं उसको, ऐड सब्ट्रैक्ट करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, तो दोनों रियल टर्म, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का वेरिएबल आई मीन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। तो सपोज वी हैव, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब करते वैसे a प्लस बी आई इंटू पी प्लस क्यू आई। तो इफ यू डोंट नो वी कैन फॉलो द वेरी सिंपल प्रोसीजर। पहला a लेके पूरा ब्रैकेट लो, फिर बी आई लेके पूरा ब्रैकेट लो, ठीक है। कभी a से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू पी इज ए पी, a इंटू क्यू इज ए क्यू, और उसके साथ i भी है, b इंटू पी बी पी आई, b इंटू क्यू इज बी क्यू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, तो ये और ये साथ में जाएंगे बिकॉज आई स्क्वायर बिकम -1, तो यू गेट ए पी माइनस बी क्यू। ये माइनस इसलिए हुआ बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा याद रखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है और आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। अब ये दोनों में से हम लोग आई कॉमन निकालेंगे, तो ए क्यू प्लस बी पी आई ना, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इफ यू पुट इट इन नंबर्स 5 प्लस 3i, इसी का एग्जाम्पल है, इंटू 2 माइनस 3i। थोड़ा अलग ले लेते थे तो फिर उड़ जाएगा वो। सिर्फ 2 माइनस आई, तो 5 इंटू 2 माइनस आई प्लस 3i इंटू 2 माइनस आई, तो 5 2 is 10, 5 into i is -5i, 3i into 2 is 6i, minus 3 into i square is 3i square. Now typically हम लोग हमेशा ये नंबर और आई स्क्वायर वाले को साथ में लेंगे बिकॉज आई स्क्वायर विल बिकम -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 into -3 will become +3, so this will be 10 plus 3, और ये दोनों के बीच में -5i प्लस 6 है, तो 10 plus 3 is 13 plus 1i, तो 13 plus i। इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 plus 3i, 2 minus 3i, 3 minus 2i, सेम प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन, पहला टर्म लो, दूसरे वाले का पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरा टर्म लो, वापस दूसरा वाले का पूरा ब्रैकेट, तो पहले 2 के साथ फुल, फिर 3i के साथ फुल। ये जो हम लोग छोटे साइज में एक्सपेंशन करते थे, दिस इज सेम लाइक दैट। तो इट विल बी 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6 minus 6i square. Now because of I square this will become +6, +6 plus 6 will give you, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, will give you 12, 9 minus 4 is +5i। तो ये सम्स किस टाइप के आता है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे, हम लोग ये देंगे और एक्सप्रेस इट एज a plus bi, ये कोई भी टाइप पे दे सकते हैं और बोलेगा एक्सप्रेस इट एज a plus bi, तो a plus bi में a3 होएगा, b3 देगा, a5 रहेगा, b3 देगा, इधर ये -2
b माइनस वन, हर एक को इसमें a 4/3, b माइनस 10/, तो इस तरह से हर टाइप ऑफ सम पहला एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दिस. तो ये था रूल्स ऑफ एडिशन, subtraction, scalar multiplication, multiplication of two complex numbers, inclusive of the concept of equality of complex numbers. Just go through this smoothly. I'm sure कि तुम लोग को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा. आप लोग इसको अच्छी तरह से 2 सेकंड देख लो and I'll be back. Okay, अभी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा. Now we go to study about division. Now, जब भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में डिविजन होता है तो टिपिकली हम लोग डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो सपोज आई हैव 2 + 3i डिवाइडेड बाय 5 - 2i. अब ये डिवाइड करने को हम लोग को डिविजन करने के लिए we typically multiply and divide by the conjugate of denominator. तो अपने को क्या आएगा? तो टिपिकली ये सम्स में हम लोग को इज इक्वल टू a + bi देंगे और वो लोग लेंगे फाइंड a + b. तो हम लोग लिखेंगे a + bi is equal to 2 + 3i, 5 - 2i, 5 + 2i, 5 + 2i. फिर जिस जगह हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. और डिनोमिनेटर तो a + b × a - b. मैंने उस चीज़ को कॉन्जुगेट मैंने बताया a + b a - b इज a² - b², वो फॉर्मूला लगाएंगे. तो 2 अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. 2 × 5 is 10, 2 × 2 is 4i, 3 × 5 is 15, 3 × 2 is 6, but I × I is I², और नीचे हो जाएगा 5 the whole square minus 4i the whole square. So this will become 10, ये हो जाएगा -1, -6 प्लस 99, ये दोनों मिला के 99, ये हो जाएगा -1, -1 × 6 -6, नीचे you'll get 25 minus 4i². I'm sorry, 16i². i² का वैल्यू is -1, तो 10 - 6 will become 4 + 99 and divided by 25 + 16. Okay, so this will become 41. और इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 4/41 + 19/41 i. तो कंपेयर करेगा तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. a is equal to 4/41 and b is equal to 19/41. तो इस तरह से पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन के बारे में. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम लोग आई का वेरियस पावर्स के बारे में समझते हैं. ये वाला पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम लोग को वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्प्लिट इट अप. तो इसमें 2 टाइप होता है. आई के साथ यू कैन आइदर हैव एन ऑड पावर और एन इवन पावर. तो जैसा इफ यू गो टू सी
powers of I. So you can either have odd power or even power. तो ऑड पावर में कभी भी ऑड पावर मिलेगा तो उसमें से हम लोग एक आई निकाल लेंगे. तो सपोज मेरे पास आई क्यूब है तो क्या करूँगा आई इंटू आई स्क्वायर. Now we all know I square का value is -1. So it will be I into -1 to minus I. Suppose मेरे पास I raised to 23 है. Okay, I'm just taking any opposite number. उसमें भी पहले एक I निकाल लो. I raised to 22 है. Because 22 plus 1 is 23. Indices का रूल, घातांक का रूल. ये तो आई ऐसे ही रहने वाला. इसको हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर इज टू 11 बिकॉज 11 टू इज 22. आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1. -1 इज टू ऑड नंबर माइनस रहेगा तो दिस विल आल्सो बी -i. कुछ इवन पावर्स पे जाते हैं. Suppose we have I raised to 4. Even powers में we'll always express it as I square का power. So this will be I square raised to 2 minus 1 square. So it will be 1. Suppose we take I square raised to 6. वापस I mean I raised to 6, so it will become I square raised to 3. I square का value is -1. -1 raised to odd number. Answer will be -1. इस तरह whenever you get even power or odd power के लिए हमेशा what we have to do? We have to remove one I और बचा कुचा टर्म का देखना है. तो उसमें भी प्लस या माइनस दोनों आ सकते हैं. तो ये इंक थोड़ा स्टिकिंग टाइप है तो प्लीज बेयर विथ मी. तो इवन ऑर्डर पे ही जाते हैं. सपोज आई हैव आई रेज टू 100. तो क्या होगा? As I told you, it will become I square is to 50 minus 1 raised to 50 minus 1 raised to even number is +1. अब वापस एक even number लेता हूँ. I square is to 102. अब देखो ये भी even है, ये भी even है. इसमें क्या हो जाएगा? 51. तो यहाँ पे 50 था, ये odd है, ये even है. -1 raised to 51. तो आंसर आएगा -1. तो I is to even पावर रहेगा तो +1 या -1 आना चाहिए. तो लर्न टू स्प्लिट इट अप. बट एग्जैक्टली I is to ऑड नंबर रहेगा. अब समझो I is to 105. तो उसमें से पहले एक I हटा लो. 104 हुआ. फिर I रखो. ये I square is to 52. -1 रेज टू इवन नंबर तो +1 आएगा. तो इसका आंसर आएगा I. बिकॉज ये आएगा 1. कितना भी बड़ा नंबर दे सकता है. I रेज टू सपोज I से 206. तो ये तो इवन हो गया. 205.
205 का आधा 204 का आधा नहीं है बस, तो कुछ 7 है तो आएगा I raised to 206 I square 2 1 203. देखो ये वाला है. अभी ये I wanted to show you this. When we remove common I निकालने के बाद odd number में I square के बाद क्या आता है उस पर निर्भर होता है. तो this will become I minus 1 raised to 103. तो इसमें -1 बचेगा because odd number है, तो this will be minus I. To understand how we can handle the powers of I. Okay. तो today का ये सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. दिस इज माय फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर वी स्टडीड, हाउ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन, हाउ इट हैज कम फ्रॉम इमेजिनरी नंबर्स. नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर से अलग कैसा है, इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर से अलग कैसा है, उनका वी स्टडीड conjugate of a complex number. We also studied addition, subtraction, multiplication, division. और ये सब को यूज करके we have to express whatever the question is given in the form of a plus bi, and we also study the different powers of I. So just go through what I have done, and in the next session we'll start doing the exercise ताकि हम लोग को समझ में आए कि ये जो हम लोग ने पढ़ा है इसी को हम लोग को उसमें यूज करना है. या तो वी हैव टू ऐड और वी हैव टू सबट्रैक्ट, या तो वी हैव टू मल्टीप्लाई. डिवीजन दिया रहेगा तो मैंने बताया तुम लोग को कि डिवीजन में, सॉरी इधर नहीं है, डिवीजन में हम लोग कैसे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड वंस अगेन आई टेल यू गाइस, टेक 11 लिटिल सीरियसली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी टेंड टू neglect most of the topics. And फिर 12th में if you want to score high, if your basics are not clear at 11th, तुम लोग को difficult रहेगा. So it's just an urge कि तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ो. And you can also join my courses. Okay, so I will be sending you videos as and when chapter wise so that you get to study them properly. And we do thoroughly. I'll be doing all the sums of the text. Apart from that, I will also be giving you additional papers. I'll be keeping test series. So guys, you can always contact me. My number is below. You can share my videos. And thank you so much guys. Have a nice day.